Hello students, in mathematical methods yesterday we discussed differentiation. So before we discuss the next topic, that is integration, let us try to solve some problems of differentiation. कल हमने कुछ रूल्स भी देखे थे, आज हम लोग उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक रिवीजन भी हो जाएगा. Okay. Yesterday I had told you that the derivative of sin x, derivative with respect to x of sin x is equal to cos x, and derivative of x with respect to x is equal to 1, because x to the power of n का derivative क्या होता है, n x to the power of n minus 1. Okay, तो इसी का यूज करके x to the power of 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 x to the power of 1 minus 1, that is 0. Okay, so now हमने एक रूल देखा था कि अगर दो फंक्शंस का एडिशन है, कोई एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव अगर हमको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली उनका डेरिवेटिव करेंगे. सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x, derivative of x. So this will be equal to derivative of cos x is minus sin x, okay, and derivative of x is 1. Clear? So अगर दो फंक्शंस का एडिशन है तो इसका डेरिवेटिव करते समय हम लोग क्या करेंगे कि उनका सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे और उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस टू फंक्शंस. इन दो फंक्शंस का डेरिवेटिव्स का सम इसका डेरिवेटिव होगा. सेपरेटली डेरिवेटिव करना है और उनका सम एडिशन करके लिखना है. क्लियर? सो दिस इज 1. सो अगर हम लोगों को इस टाइप का कोई फंक्शन है, x to the power of 5 प्लस e to the power of x, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव d dx ऑफ x to the power of 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e to the power of x. क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू x to the power of 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, n x to the power of n minus 1, that is 5 minus 1, 4, plus what is the derivative of e to the power of x? This is e to the power of x. Clear? So this is about the addition rule. अब हमने एक प्रोडक्ट रूल भी देखा था. प्रोडक्ट रूल मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव करते समय हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. सो अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x e to the power of x. ओके, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन. क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ the first function. Clear? So this is equal to x, derivative of e to the power of x is e to the power of x plus e to the power of x into derivative of x is 1. Clear? So this is equal to x e to the power of x plus e to the power of x. Okay, so this is the application of the product rule. Fine. And then we had also discussed quotient rule. Quotient rule क्या बोलता है, अगर u by v का डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है, u by v, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. Okay, now let us try to solve one problem based on this. So अगर हमारे पास x upon e to the power of x इस टाइप का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर e to the power of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर प्लस माइनस न्यूमरेटर into derivative of
द डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. क्लियर? So now this is equal to e to the power of x into derivative of x is 1 minus x into derivative of e to the power of x is e to the power of x upon e to the power of x to the power of 2 मतलब e to the power of 2x. Clear? So this is as simple as this. Very easy to determine the derivatives. अभी तो खैर हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ नहीं रखा है. Once you study this topic in detail in mathematics, you will find it even easier. Clear? So now अभी हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे. This is the last topic from this chapter, and this is easy. Once you understand derivatives, understanding integrals is very easy. See, integration, in the beginning only I would like to tell you that integration is antiderivative. It can be understood as antiderivative. मतलब क्या है? ये डेरिवेटिव का अपोजिट. मतलब सपोज हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x है. Now डेरिवेटिव ऑफ x is equal to what? 1. इसका मतलब इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल अगर हमको फाइंड आउट करना है, ये dx का मतलब है वेरिएबल इज x. क्लियर? सो इसका इंटीग्रल अगर फाइंड आउट करना है मतलब ये किसका डेरिवेटिव है. ओके, सो ये किसका डेरिवेटिव है? x का. देयरफॉर इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? x. ओके, नाउ सिमिलरली वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. मतलब अगर कोई ये पूछे कि भाई cos x किसका डेरिवेटिव है, इसी का मतलब क्या है? cos x का इंटीग्रेशन क्या है. इसलिए हम लोग इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं कि जो भी चीज दी हुई है ये किसका डेरिवेटिव है. नाउ cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का. इसलिए cos x का इंटीग्रेशन है sin x. ओके, नाउ ऑफ कोर्स ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है. ओके, इसका मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करना है. रीजन क्या है मैं बताता हूँ. जैसे देखिए sin x प्लस कोई कांस्टेंट है सपोज 5, इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है. तो डेरिवेटिव क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव होगा cos x प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा 0. ये 5 की जगह पे 10 भी होता तो भी यही आता. इसका मतलब ये cos x का इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे तो sin x प्लस कोई तो भी कांस्टेंट होगा. ओके, जिसको डिफरेंशिएट करने पर हमको क्या मिल जाएगा? cos x. इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं c. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos x इज व्हाट? माइनस sin x. इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ sin x अगर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? देखिए, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x, माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x. सो माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x. इसीलिए इंटीग्रल ऑफ sin x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ cos x प्लस c. ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करना जरूरी है. क्लियर? सिमिलरली से डेरिवेटिव ऑफ x to the power of n is equal to nx to the power of n minus 1. ओके, सो n तो कांस्टेंट है. क्लियर? अब इंटीग्रल ऑफ x to the power of n minus 1 करते तो क्या होता है? x to the power of n upon n आता. ओके, सो इंटीग्रल ऑफ x to the power of n अगर हो तब क्या होगा? x to the power, देखिए n minus 1 का अगर करते तो n होता, मतलब इसमें हमको एक ऐड करना पड़ रहा है. तो सेम थिंग है, x to the power of n का इंटीग्रल क्या होगा? x to the power of n plus 1 upon सेम थिंग n plus 1 plus of course the constant of integration for indefinite integrals. Okay,
Same thing you can write integrals as antiderivative. Clear? So वैसे ही जैसे हम लोगों ने डेरिवेटिव्स देखे थे उसका अपोजिट वो सारे फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। अब इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? से अगर हमारे पास कोई कर्व है, कोई ग्राफ है, ओके, दिस इज x, दिस इज द फंक्शन y, तब इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर दिस कर्व. Okay, so integration represents area under the curve. Okay, दूसरा एक मीनिंग बताता हूँ कि अगर कोई वर्क या कोई भी प्रोसेस ओके छोटे छोटे स्टेप्स में करी जाए, सपोज ये वर्क है, एक छोटी स्टेप ये है उस टोटल वर्क में, तो तब जो वर्क परफॉर्म करना हो जाता है इफ दैट वर्क इज दिस वन. ओके, नेक्स्ट छोटी सी स्टेप है, द वर्क डन इज दिस वन. नेक्स्ट छोटी सी स्टेप है, ये सारी छोटी छोटी स्टेप्स को ऐड करना, समेशन करना, इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो इंटीग्रेशन करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा? We will get the total work done during the displacement from x is equal to x0 to x is equal to x1. x0 से x1 के बीच में जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब जो भी वर्क परफॉर्म किया जाए, ओके, किया जाएगा, वो वर्क हमको कैसा मिल पाएगा? इंटीग्रेशन से मिल पाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रल्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड derivatives and then integration which is just antiderivative. Clear? So इसके कुछ एक प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है और कुछ रूल्स, इसके एक दो रूल्स समझना जरूरी है. सेम जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स में सम करते हैं तो क्या होता है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते समय हम सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं. सेम थिंग इज वैलिड इन इंटीग्रल्स. अगर दो फंक्शंस है, इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, और जो आंसर होगा दैट विल बी द सम ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ दिस टू फंक्शंस सेपरेटली. सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट है, ओके, fx सपोज है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और इट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? दिस कांस्टेंट विल बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. सिर्फ हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना होगा? सिर्फ ये fx का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस इज अबाउट सम बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? और भी रूल्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हम लोगों को अभी देखने की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों को बस ये बेसिक चीज़ें लगेगी. ओके, थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी लगेगा, वो हम लोग जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा, सो दैट देयर इज़ नो फर्दर एडिशन ऑफ कन्फ्यूजन इनटू दिस. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड all these basic mathematical methods that we will be using frequently during our discussion of physics and different concepts associated with it. Thank you very much for watching these videos. Thank you.